हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड रूट्स फॉर टू द इंडिया इज एशियंट टाइम? एक्सप्लेन। देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। What was the contribution of the land routes to the India in ancient time? And they explain. The answer here is the most important. The contribution of the land routes to the India in ancient time are given below. The large land boundary of India has helped to be developed link with their neighborhood countries. There is an important point. In the first, the large land boundaries of India has helped to be developed links with her neighboring countries. That is important. And B here, it's a contribute in exchange of idea and commodities and since ancient time. There is also second point is important to contribute it in the exchange of idea and commodities and ancient time. Exchange of idea. And the next here, the idea of the is up Upanishad and the Ramayana is Gita, etc. have become now to the world. There is important here point. The idea of the Upanishad, Ramayana, and the Gita, and Mahabharata have to become now to be in the world. And here, the India is a numerous as well as the decimal system is a long back across the border, and the Arabs took this idea to be best. There is a most important here. The Indians numerals as well as the decimal system is a long back across to be a border, and the Arabs and took this as the idea to the west. And the next point is also important. The spicy, mutualism, and other merchandise were taken away from the India to different country through this land route. You know that there is a most important point. The spicy and muslins and the other merchandise is were to taken away from the India to different countries through this land of routes. And the next and the last point is the most important here. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architecture style of the domes and the minarets from West Asia can be seen in their different part of our countries. There is also important here. The religious here sculptures and the architectural style of the domes and the minarets, there are a religious type and the domes and minarets, they are West Asia can be seen in a different part of our country. There is a most important question and intelligent answer here. नौवां क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से देखा जाए तो। जितना हमने क्वेश्चन किया सभी के क्वेश्चनों का जो है ये क्वेश्चन जो है निचोड़ क्वेश्चन है, यानी देखा जाए तो सभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन किया है उसके मिला के ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक था। क्योंकि प्राचीन काल में स्थल मार्गों का भारत को क्या योगदान था, व्याख्या करना है। देखिए, प्राचीन काल में स्थल मार्गों का जो है भारत का क्या योगदान रहा, यानी भारत ने क्या योगदान दिया पूरे विश्व के लिए। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ जो है दूसरे देशों से सीखा है और दूसरे देशों से जाना है। लेकिन ये नहीं कि भारत ने सिर्फ लेना ही जाना है, भारत ने देना भी बहुत कुछ जाना है। तो ये बात इस क्वेश्चन जो है पढ़ने के बाद समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि भारत ने क्या लिया और क्या दिया है। कहते हैं भारत के पास भी बहुत ऐसे धरोहर है जो पूरे विश्व के साथ साझा किया गया है, और आज विश्व ने इसी साझा के कारण जो है अपने आप को आगे बढ़ा लिया, लेकिन भारत जो है अभी भी पीछे रह गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान है भारत का पूरे विश्व के लिए। कहते हैं प्राचीन काल में भारत के स्थल मार्ग का योगदान नीचे कुछ पॉइंटों से आपको समझ में आ जाएगा। अगर पहले पॉइंट के अंतर्गत हम देखें तो इसमें साफ हो जाता है कि भारत के विशाल जो है भूमि, यानी भारत की विशाल भूमि ने उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध विकसित करने में काफ़ी मदद किया है। क्योंकि इसके आपने देखा होगा तटरेखा काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो देखा जाए तो भारत की विशाल भूमि सीमाएं ने उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध विकसित करने में मदद की है, और देखा जाए तो भारत के बहुत से देश जो है पड़ोसी देश के रूप में विद्यमान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत से देशों से जो है भारत बहुत कुछ सीखा भी है और जाना भी है और समस्या को भी झेला है।
कहते हैं अगर बी पॉइंट की बात करें तो इसने जो है प्राचीन काल से विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान में काफ़ी योगदान दिया है। यानी विचारों का भी काफ़ी प्राचीन समय से और वस्तुओं का आदान प्रदान होना स्वाभाविक बात बन गई है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। अगर बात सी करें हम तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी बातों को बताने की कोशिश किया गया है। देखिए, भारत ने उपनिषद हो, रामायण हो, गीता हो आदि का विचार दुनिया के को ज्ञात हो गए हैं। यानी रामायण में जो बातें लिखी गई थी, उपनिषदों में लिखी गई थी, इवन कि आपको पता है कि भारत में चरक संहिता का जो है शुभ आरंभ हुई थी और इसी में जो है सर्जरी की सारी बातें लिखी गई थी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया की सर्जरी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी विदेश की है। और विदेश वालों ने ये सर्जिकल सिस्टम सीखा कहाँ से? हमारे देश से सीखा, और उन्होंने जो है अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा के उस चीज़ों को जो है आगे बढ़ा लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि भारत से पूरे विश्व ने सीखा है, बहुत कुछ जाना है। और कहते हैं भारत से ही कॉपी करके उन्होंने अपना जो है उस पर मोहर लगा दिया कि हमने ये स्टिमुलेट किया है। और आज जो है हम देखिए विदेशी किताब पढ़ रहे हैं। कहते हैं हमारे देश में जो किताबें हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने आपके गीता रामायण है, देखा जाए तो यहाँ तक कि आप चरक संहिता सब है, सारे में सभी दुख दर्द का हर चीज़ का बातें जो है विस्तार पूर्वक लिखी गई है और समझाई गई है। कहते हैं ऐसा कोई भी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, लेकिन फिर भी जो है हम विदेशी की तरफ जो है अपनी नज़रें टिकाए रखे होती हैं, क्योंकि हम लोग विदेशों के जो है चीज़ों पे काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। इसका कारण तो यही बना ना। तो ये क्वेश्चन भी हमें काफ़ी कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है कि उपनिषद हो, रामायण हो, गीता आदि के विचार दुनिया को ज्ञात हुआ है तो वो जो है प्राचीन काल स्थल मार्गों के कारण ही संभव हो पाया है। अगर मार्ग नहीं होता तो वो लोग भारत से परिचित नहीं होते और उनको ये सब बातों का ज्ञान शायद नहीं होता। यदि हम बी पार्ट की बात करें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शा रहा है कि भारतीय अंकों के साथ साथ दशमलव प्रणाली बहुत पहले सीमा पार कर गई थी और अरब इन विचारों के पश्चिम ले गए। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात आता है कि भारतीयों ने जो है अंकों का जो है गणना करवाया, दशमलव प्रणाली दी, ठीक है, और कहते बहुत सीमा ये पार कर गई और पूरे देश में ये फैल गया। आप सोच रहे हो कि जो कंप्यूटर का विकास हुआ है वो विदेशों में हुआ है, लेकिन आपको शायद इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो कंप्यूटर में कोडिंग होती है 0 1 की, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि 0 की खोज भारत में हुई थी। तो अमेरिका वालों ने या विदेशों वालों ने भारत से इसको लेके और कंप्यूटर का आविष्कार कर लिया, तो वो उन्होंने अपना नाम का थप्पा लगा दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो उन्होंने कोडिंग बनाई कंप्यूटर की 0 और 1 वो भारत के से लिया गया। तो आप समझ सकते हो कि भारत का देन हर एक क्षेत्र में है, हर एक देशों को है, लेकिन वो लोग जो है कितने घण हैं और वो जो है उपकार को नहीं मान रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी इस बात को दर्शा रहा है कि 0 का खोज हो या दशमलव का खोज हो, वो सब भारत में ही हुआ और भारत के विद्वानों ने ही किया। सबसे पहले सूरज में जब ग्रहण लगी थी तो आर्यभट्ट ने इस बात को साफ कर दिया था, लेकिन आज नासा वाले कहते हैं कि आज हमने खोज करके पूरे अपना जो है मोहर लगा दिया। तो ये बात काफ़ी क्वेश्चन दर्शा रहा है, काफ़ी महत्वता को बता रहा है कि भारतीय अंकों के साथ साथ जो है दशमलव प्रणाली बहुत पहले सीमा पार कर गई थी और अरब इन विचारों को पश्चिम ले गए। उसके पश्चात अगर हम ई पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि मसाले, मलमल और अन्य माल इन जो है स्थल मार्गों से भारत विभिन्न देशों में ले जाया जाता था। तो जर्नल सी बात है कि स्थल मार्ग का इतना महत्वपूर्ण था कि दशमलव प्रणाली जो है सीमा पार कर सकता है, तो वही मसाले, मलमल, अन्य सामान क्यों नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो अगर मसाले से जो उनको जो है रूबरू करवाया गया तो वो भारत ही था। वास्को डी गामा जब भारत में आया तो मसाले से इतना प्रभावित हुआ कि कहते हैं कि वो पूरा जहाज़ भर के मसाले यहाँ से ले गया और अपने देश में ले जाने के बाद उसने जो उसका व्यापार किया, कहते हैं उसको 10 गुना मुनाफा हुआ। फिर दोबारा वो ललायत हुआ, फिर दोबारा भारत में आया और ऐसे करते करते वहाँ के बहुत से लोग भारत में आए, भारत में शिफ्ट हुए और भारत पे ही जो कब्जा करके जो है अंग्रेज़ों के रूप में यहाँ विद्यमान हो गए और 250 साल तक जो है अपना राज किया और भारत को जो है नोच नोच कर धरती यहाँ से लेके चले गए। इवन कि कैनूर हीरा भी जो था वो भी भारत का था, अब जो है इंग्लैंड वालों का है। तो आप समझ सकते हो कितना कुछ जो है भारत से जो है लोगों ने लेके चले गए और अपना नाम का थप्पा लगवा लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है क्वेश्चन में। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि दूसरी और ग्रीक मूर्ति कला का प्रभाव
और पश्चिम एशिया के गुंबद और मीनारों की स्थापन शैली हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में देखी जा सकती है। अब देखिए, अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग में भी जो है विदेशी के जो जितने भी कलाकार हैं सब विदेशी कलाकार हैं। ठीक है, चाहे सरगिल हो या जो भी हो, आपने पेंटिंग अगर पढ़े होगा तो आपको एहसास होगी कि बहुत बहुत जो है, चाहे रोनाल्डो हो चाहे सरगिल हो, बहुत सारे विदेशी हैं और सब ने विदेशी के जो है अब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि सारे पद्धति जो है भारत से ली गई, क्योंकि इसका साक्ष्य जो है पुरानी इमारत है जिस पे हर तरह की जो है तस्वीर बनाई गई। ठीक है, खंडरे हैं जहाँ पर तस्वीर देखने को मिली और तेलियाँ जो है पट्टियों से बनाई गई बहुत से हमें कलाकृति मिली। तो इससे क्या जाहिर होता है कि भारत में ये कला थी कि विदेश में कला थी, किसको श्रेय जाना चाहिए। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन था कि स्थल मार्ग जो है भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए किस प्रकार जो है इम्पोर्टेंट था। तो आप समझ सकते हो कि भारत के जो स्थल मार्ग थे, इन्हीं स्थल मार्गों के कारण पूरे देश को जो है भारत की सभ्यताएं, भारत की जो है उपलब्धियाँ और भारत के ज्ञान से अवगत करवाया और उन्होंने जो इन ज्ञानों को मॉडलाइज करके जो है काफ़ी फ़ायदा अपने देशों को पहुँचाया। तो देखा जाए तो भारत में हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ में सक्षम है भारत। भारत किसी से कम नहीं है, लेकिन भारत में कुछ नेता और राजनीति के कारण जो है भारत अभी पिछड़ रहा है। कहते हैं आज सिर्फ लोग अपने मकसद को ही जो है आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को बढ़ाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ अपना जो है अपना नाव चलाना चाहते हैं, अपना सिक्का चलाना चाहते हैं सिर्फ। तो ये बात जो है गलत है। कहते हैं भारत को हमेशा आगे बढ़ाने चाहिए और जो चीज़ हमसे दूसरे देशों ने ले लिया है उसको भारत में वापस कर लाने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर जितना त्रिपाण सेंटर को लगा वो क्वेश्चन 9th क्वेश्चन तक जो है काफ़ी महत्वता को दर्शाया। और ये काफ़ी 9th क्वेश्चन जो है आपको 9 क्वेश्चन जो आपको इसमें मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और मेरा विश्वास है कि इससे अधिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही नहीं सकता और आएगा भी तो घुमा फिरा का आंसर इसका यही होगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चनों को जो है अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जो बच्चे अभी एग्जाम भी देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो नए सेक्शन में जाएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी से वो लोग याद करना स्टार्ट कर देंगे तो एग्जाम के टाइम तक तो इसके वो मास्टर बन जाएंगे इन क्वेश्चनों के। तो इसलिए दोस्तों इसको अच्छे से नोट कीजिए। कोई आपके भाई बहन 8th क्लास में है, वो 9th में आने वाले हैं, उनको भी ये क्वेश्चन दे दीजिए स्टार्टिंग से, जिससे कि वो अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। ठीक है, अगर इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। कहते हैं जब तक आप मुझे अच्छी रास्ता नहीं बताओगे, अच्छी बातें नहीं बताओगे, तब तक मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बात सदैव जानता हूँ कि हर बच्चों में एक इम्पोर्टेंट ज्ञान छुपा हुआ होता है और मैं जानता हूँ कि मुझ में इसमें बहुत सी गलतियाँ हो सकती है। तो आप जो है उस बात के लिए कमेंट कर सकते हो, समझाने को बता सकते हो कि इसमें ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अगर ये सब बातें आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। और इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना है, आपने को जो है यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और 24 घंटे के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसे जो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में होंगे उनको ज़रूर ये वीडियो प्राप्त हो जाएगा और जिनको नहीं देखना है वो भी इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं अच्छी चीज़ों के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों जो चीज़ आपकी है, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसको तो आपको कैच करके लिख के अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगा देना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आप सोचो या न सोचो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन त्रिपाण सेंटर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही इम्पोर्टेंट दिया है और इसके रिगार्डिंग आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव जरूर कर लीजिए, तभी जो है आपको आने वाला समय में हर एक सब्जेक्ट का हर एक सिलेबस जो है आपको त्रिपाण सेंटर पे मिलेगा, चाहे वो 8th क्लास का हो चाहे MA तक हो। आपको समय रहते रहते सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो आपको त्रिपाण सेंटर पे अपलोड नज़र आएगा।